Today we will discuss about some of the properties of the materials. In my previous videos, I have already discussed about ductility, malleability, brittleness, hardness. But in today's class, some of the other properties like elasticity, plasticity, flexibility, strength, all this property will be discussed. So first property is elasticity. Elasticity is the ability of the material to return to its original shape after it has been stressed. We can take the example of elastic band or rubber, which has elasticity property. Here you can see the example. This person is trying to pull the rubber band, but when he is pulling, it is stretching. That means it undergoes some changes in its original shape, but after releasing the load, the material comes to its original position. क्या होता है, मतलब यहाँ पे जो रबर बैंड के ऊपर ये फोर्स अप्लाई कर रहा है ये आदमी, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद इसका जो लेंथ होता है थोड़ा एक्सपांड कर जाता है. देखिए ऊपर की तरफ जो खींच रहा है तो एक्सपांड हो जाता है. जब फोर्स रिलीज कर देता है और छोड़ देता है तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है. दैट मीन दिस मटेरियल shows the property of elasticity. Next property is plasticity. So plasticity of the material is a property by which the material undergoes some degree of permanent deformation without rupture or failure. If the temperature will increase, then plasticity will definitely increase. You can better understand with the help of this example. We can take the example of a flour mixed with water. When we are mixing some water with the flour, whenever we are applying some forces on the floor, then permanent changes takes place in the floor. Like this, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक आदमी कुछ आटे में पानी मिक्स करके इसको जो भी शेप दे रहा है वो उसी शेप में कन्वर्ट हो रहा है. दैट मीन व्हेन एवर ही इज अप्लाइंग द लोड, द परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑकर्स इन द फ्लोर मिक्सड विथ वाटर. दैट मीन दिस इज ए प्लास्टिक चेंज. एंड आई सेड ऑल्सो इफ वी increase the temperature, then also plasticity will increase. So we can take the example of hot rolled steel sections. So with the help of high temperature, we can mold the steel section in any form. Like this, the steel molded into the sheet form. So the material which has elasticity property, that has also ductility property. Not all materials, but some of the materials which has elasticity property has also ductility property. But all the ductile materials, most of the ductile materials has some elasticity property. So let us understand the stress strain graph of the ductility materials, which I have already discussed. Now see, this is a material which has some ductility property. Whenever we are applying loads on it, then the stress within the material increases. Strain increases as well as stress increases. We will discuss about the stress and strain in other videos thoroughly, but you just remember, whenever we are applying some load on the materials, then the material undergoes changes in its shape, in its length, in its width. That changes is nothing but that changes with respect to its original change is nothing but the strain. And when strain occurs, the material always tries to remain in its original position, but after the application of load, it undergoes some changes. So that is why stress developed within the material. Stress is nothing but the internal resistance to resist the force, resist the external force. That is a stress. We will discuss later.
So if the strain increases, then definitely stress also increases. So up to certain limit, the stress strain diagram is linear. That means whenever strain increasing, stress is also increasing. But after that it is with a very small amount of stress, strain is increasing continuously. So this is a plastic change. So ductile materials has elastic property as well as the plasticity property. You can see after the application of the load, this transverse dimension reduces and at the failure point it the fracture occurs at this position. Here you can see. Okay, now come to the next property, that is strength. So strength is the ability of the material to withstand the forces of compression, tension and shear. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि कंप्रेशन क्या होता है, टेंशन क्या होता है, शियर क्या होता है. तो जो भी इस टाइप का फोर्सेस है, तीनों प्रकार के फोर्सेस है, अगर कोई भी मटेरियल इस तीनों प्रकार के फोर्सेस को रेजिस्ट कर लेता है, दैट मीन दैट इज ए स्ट्रॉन्ग मटेरियल. So we are not taking here the moment as well as the torsion concept, because we have to provide the protection against these axial forces, that is compression and tension and shear forces. And the strength of the material is very very important for the construction of a building, bridges, aircraft. Now come to the stiffness. So stiffness is the resistance of the material to elastic deformation or deflection. So मतलब क्या होता है, देखिए इलास्टिक डिफॉर्मेशन डिफ्लेक्शन क्या होता है ये आप बेटर यहाँ पर समझ सकते हैं. उससे पहले फ्लेक्सिबिलिटी के हमें बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं. दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी इज़ नथिंग बट द रिवर्स ऑफ द स्टिफनेस. सो यू विल बेटर अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. एक्चुअल फ्लेक्सिबिलिटी में आप एक चीज़ जान लीजिए, हम लोग लोड को स्पेसिफाई करते हैं और स्टिफनेस में हम डिफ्लेक्शन को स्पेसिफाई करते हैं. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. हियर यू कैन सी दिस इज ए मटेरियल which undergoes on which we have applied some load. So let the load is F. So whenever we are applying the load, in that case what happen, some expansion occurs here. The material will undergo some expansion or elongation or deformation. So if we are specifying the load value, that is we are applying 1 kg of load, how much expansion or elongation will occur. If under 1 kg of load maximum expansion occurs, then in that case the material, we can say the material is flexible. मतलब कहने का मतलब होता है जो फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है कम लोड में भी ज़्यादा एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा, होगा ज़रूर होगा कम लोड में. तो इसलिए हम लोड का कुछ स्पेसिफिक वैल्यू ले लेते हैं. मतलब यहाँ पर हम मतलब 2 kg 3 kg 4 kg ये लोड अगर लेंगे तो ज़्यादा एक्सपेंशन होगा. तो 1 kg के लोड में कितना एक्सपेंशन होता है, अगर 2 मटेरियल है, एक मटेरियल 1 kg के लोड में 2 mm एक्सपांड हो रहा है और दूसरा मटेरियल 1 kg के लोड में 5 mm एक्सपांड हो रहा है. तो 5 mm जो मटेरियल एक्सपांड हो रहा है दैट इज़ फ्लेक्सिबल मटेरियल एज कम्पेयर टू द अदर मटेरियल. अगर कोई स्टिफ होगा, रिजिड होगा, तो क्या होगा, एक्सपेंशन ज़्यादा नहीं होगा. तो वहाँ पर हमको एक्सपेंशन की स्पेसिफिकेशन ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर हम जितने भी लोड ज़्यादा बढ़ाएं तो एक्सपेंशन ज़्यादा होने वाला नहीं है. तो इसलिए हम चेक करते हैं 1 mm एक्सपेंशन होने के लिए मतलब कितना लोड की ज़रूरत है. ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम ये अदर स्टिफनेस. सो वी कैन से स्टिफनेस ऑफ द बीम मीन्स द अमाउंट ऑफ फोर्स और मूवमेंट. देखिए फोर्स के बारे में हमने पहले भी बात किया था कि पांच प्रकार के फोर्स ऐसे होते हैं, जो कंप्रेशन, टेंशन, शियर और मूवमेंट भी एक प्रकार के फोर्स भी है. मूवमेंट, टॉर्सन, ऑल दिस थिंग्स. सो स्टिफनेस ऑफ द बीम मीन्स द अमाउंट ऑफ फोर्स और मूवमेंट दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ए यूनिट डिफ्लेक्शन. ठीक है,
तो यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए कितना मूवमेंट और कितना फोर्स की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया 1 mm. Like that we can say flexibility means the amount of deflection or rotation for an applied unit force or moment. So देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस के टाइप का, कितना प्रकार के फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस है. So flexibility and stiffness is of two types, that is linear flexibility and rotational flexibility, as well as linear stiffness and rotational stiffness. अगर linear force अप्लाई करता है मतलब कंप्रेशन टेंशन यही फोर्स हम अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई मैंने किया है, ठीक है, ये एक प्रकार के linear फोर्स ही है. एक्सियल फोर्सेस हम बोल सकते हैं, तो लीनियर फोर्स है. तो इसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा तो लीनियर फ्लेक्सिबिलिटी और लीनियर स्टिफनेस ये हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं. अगर यहाँ पर हम मूवमेंट अप्लाई करते हैं तो हो जाएगा रोटेशनल. मूवमेंट भी एक प्रकार का फोर्स ही है, रोटेशनल हो जाएगा. तो यहाँ पर ऐसे बेंड हो जाएगा, ये मटेरियल ऐसे करके ये बेंड हो जाएगा. बेंड हो जाएगा, यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन आएगा, दिस डिफ्लेक्शन बाय द हेल्प ऑफ दिस डिफ्लेक्शन वी कैन मेजर द फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज स्टिफनेस. तो हम यहाँ पर स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी मटेरियल में कितना परसेंटेज है वो मेजर करते हैं, कितना फ्लेक्सिबल है, कितना स्टिफ है, कितना रिजिड है, तो उसको हम मेजर करते हैं. तो कैसे मेजर कर, देखिए, तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं F, तो डिफ्लेक्शन होता है डेल्टा. पहले तो इसका जो लेंथ था इतना ही था, ठीक है, बाद में इसका जो लेंथ है वो इंक्रीज़ कर गया. तो इंक्रीज़ करने के बाद तो कितना डिफ्लेक्शन हुआ, डेल्टा अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑकर्स. सो विद द हेल्प ऑफ फोर्स F डेल्टा डिफ्लेक्शन ऑकर्स, ठीक है. तो कह सकते हैं कि हम डेल्टा डिफ्लेक्शन होने के लिए, ठीक है, F फोर्स की ज़रूरत है. सो वन डिफ्लेक्शन होने के लिए, जैसे कि हमने स्टिफनेस की बात की थी कि क्या था, जैसे कि 1 mm डिफ्लेक्शन होने के लिए कितना फोर्स की ज़रूरत है, F बाई डेल्टा. सो दिस F बाई डेल्टा इज़ नथिंग बट द स्टिफनेस. तो इसका हमने एक सिंबल दे दिया है, दैट इज़ K. तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा दैट इज़ 1/K इज़ नथिंग बट द फ्लेक्सिबिलिटी. मतलब F फोर्स में डेल्टा डिफ्लेक्शन होता है, तो 1 kg ऑफ फोर्स में कितना डिफ्लेक्शन होगा, डेल्टा बाई F. सो दिस डेल्टा बाई F इज़ नथिंग बट द फ्लेक्सिबिलिटी. तो यहाँ पर किन किन प्रकार के फोर्सेस हम अप्लाई करते हैं और डिफ्लेक्शन कैसे होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं. कंप्रेशन में ऐसे डिफ्लेक्शन होता है, टेंशन में ऐसे डिफ्लेक्शन होता है, टॉर्सन और जो भी मूवमेंट हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ऐसे ही डिफ्लेक्शन होता है, देख सकते हैं. या यहाँ पर एक स्प्रिंग मटेरियल है जिसके ऊपर हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके अंडर में डिफ्लेक्शन होता है. तो यहाँ पर हम फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस को मेजर कर सकते हैं, जो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, दैट इज़ K इज इक्वल टू F बाई डेल्टा. कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और कितना उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है. ओके, यहाँ पर एक मटेरियल है जो टोटली फ्लेक्सिबल है ही नहीं, रिजिड है. Under the load it has showing no deformation. It is showing some deformation but very little. You can see this is a very flexible material, but this is a rigid material, aluminum type of material or stainless steel. So चलिए इसके ऊपर कुछ हम जो क्वेश्चंस है उसको भी डिस्कशन कर लेते हैं. Some of the MCQs that is on properties of the material which I have already discussed. You can see my previous videos. If you have any doubt then you can ask me. चलिए पहली तो बात है, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, the tendency of deformed solid to regain its actual proportion instantly upon unloading is known as. मतलब ये पूछ रहा है, अगर हम किसी के ऊपर लोड देते हैं और उसके बाद इंस्टेंटली अनलोडिंग कर देते हैं तो डिफॉर्म मटेरियल क्या होता है, एक्चुअल पोजीशन में आ जाता है. तो अभी हमने बताया तो क्या होगा, तो इसको बोलते हैं हम जो इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है. डिलेड इलास्टिक नहीं होगा, क्योंकि देखिए मटेरियल के ऊपर अगर हमने मटेरियल के ऊपर इधर अगर हमने लोड दिया है तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसे डिफॉर्मेशन हो जाएगा. लोड रिलीज़ करने के बाद वो ओरिजिनल शेप में फिर से आ जाएगा, इंस्टेंटली आ जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर स्लोली नहीं आ रहा है, तो डिलेड इलास्टिक नहीं होगा जो क्वेश्चन में पूछा रहा है.
और इनइलास्टिक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, प्लास्टिसिटी मटेरियल नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने लोड अप्लाई किया, अगर डिफॉर्म हो गया तो यही शेप पे कन्वर्ट हो गया तो इसी शेप में परमानेंटली रह जाएगा, तो ओरिजिनल शेप में आएगा ही नहीं। चलिए और एक क्वेश्चन है, द परमानेंट मोड ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए मटेरियल इज नोन एज, जो जैसे कि हमने अभी बताया परमानेंट मोड कैसे होगा, अगर इसके ऊपर हम लोड अप्लाई करेंगे और डिफॉर्म हो गया तो यही शेप इसका परमानेंट हो जाएगा लोड रिलीज करने के बाद भी, तो इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो स्लिप डिफॉर्मेशन कुछ दूसरा कंसेप्ट है, ऐसा नहीं होगा। ट्विनिंग डिफॉर्मेशन जो ट्विस्टिंग फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो भी नहीं होगा। इलास्टिक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, प्लास्टिसिटी होगा। जो पहले की हमने वीडियो बनाया था तो उसमें भी हमने बात किया था द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू डेवलप ए कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर अंडर द रिपीटेड लोडिंग। तो रिपीटेड लोडिंग की अगर बात करते हैं तो इसका जो आंसर होगा वो फटीग ही होगा। ठीक है, सो आई होप आज के लिए हम क्लास को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। So I hope you have understood all the concepts regarding the properties of the material, which plays a vital role for calculation of strength of the material. That is why properties of the material is very very important before reading about the strength of materials. So आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में कुछ नोन कंसेप्ट जो आप लोग को पता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट कैलकुलेशन, ऐसे के बारे में ऐसा नेक्स्ट वीडियो हम क्लास में बनाएंगे। तो उसके बाद ही हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को स्टार्ट कर सकेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।